Okay, the same topic. Gravitation. And we have done that inside the planet, G is directly proportional to D, and outside the planet, G is inversely proportional to D square, and the graph between D and G, so it's directly proportional up to the surface radius and then inversely proportional. This was the last topic. And the next is now, suppose we have two planets, two objects. Suppose this is Sun and this is Earth. Earth is revolving around the Sun and we have to draw graph for the resultant G. ये जो पहले वाला था बेटा ये इंडिविजुअल प्लैनेट की G थी, सिंगल प्लैनेट की G और D का ग्राफ. अब हमने दोनों के इकट्ठा बनाना है G और D का ग्राफ बेटा. So first we will draw a line, vertical line exactly at the center of the two objects. This line is representing the distance. This point is the radius of the Sun, and this point is the radius of the Earth. चीज याद रखें बेटा, G is vector. तो अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी. ऑब्जेक्ट इधर फॉल करेगा तो G सपोज पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन इस पे इधर फॉल करेगा तो G नेगेटिव लेंगे. So we will take G of the Sun positive, G of the Earth negative. आप उल्टा भी ले सकते हैं, अर्थ की पॉजिटिव लेनी है तो G की सन की G नेगेटिव लेना है. इट्स अप टू यू. अब यहाँ सेंटर से लेकर सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, so directly proportional inside the Sun. The value of the G of the Earth will be smaller than that of the Sun, लेकिन opposite direction में होगी. Inside directly proportional होगी, तो ये directly proportional छोटा ग्राफ बनाना है, but opposite बनाना है. उसके बाद, suppose this is the point where the pull of the Sun and the pull of the Earth both are equal. मतलब G की वैल्यू एक मास पे सेम आ रही है. Suppose +2 this side, -2 this side, the resultant becomes 0. किसी की भी 0 नहीं है, लेकिन दोनों की resultant 0 हो गई. So this is resultant 0 point. अब outside the Sun, inversely proportional, so we will draw the graph like this, inversely, but we have to make it 0 here. Earth inversely, so we will make it 0 here. So this is G against D graph for two objects. इसी को आप अप्लाई कर सकते हैं अर्थ और मून के लिए भी, सन और मार्स के लिए भी. So this is the resultant G against D graph. लेकिन जो पिछला हमने बनाया था वो सिर्फ आइसोलेटेड था, इंडिविजुअल प्लैनेट का था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने G और D का आइसोलेटेड प्लैनेट का बनाना है या दो का कंबाइंड बनाना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. G वेक्टर होता है, ये ख्याल करना है. ओके, नाउ next, we assume that this is our planet Earth और ये perfect sphere है. Assume करते हैं. This is the center, this radius R, this radius R. लेकिन Earth की दो motions होती हैं. Number one, it spins
around its axis, and number two, it rotates around the sun in its orbit. So हम one by one लेते हैं जी. Suppose we take only spin and we ignore the rotation. तो सिर्फ अभी spin को discuss करते हैं. ये नहीं कि rotation होती है. हमने spin को discuss करना. तो हम सबसे पहले देखेंगे. This is the North Pole. This is the South Pole. And this line is equator of the Earth. अब कहाँ spin करती है? It spins around the axis of the spinning, which is passing through the pole. So this is the line, which is the spin axis. पूरी Earth axis of the spin के around twist कर रही है. और इसका ट्विस्ट का डायरेक्शन पूछें तो वो होती है वेस्ट टू ईस्ट. इसीलिए इंडिया में सन पहले राइज करता है क्योंकि वेस्ट से ईस्ट में जा रही है बेटा, और पाकिस्तान में बाद में राइज करता है. सो द स्पिन डायरेक्शन इज वेस्ट टू ईस्ट एंड द स्पिन एक्सिस इज पासिंग थ्रू पोल्स. नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से पास हो रहा है. The whole of the Earth is spinning around this axis from west to east. Okay, अब हम assume करते हैं एक object which is placed exactly at the pole with small mass m. अब according to Newton's law of gravitation, इसका और अर्थ के बीच में force of gravitation का जो formula होगा g mass of the object mass of the earth divided by distance square. और distance क्या है? center से लेना है तो it's approximately the radius of the earth. अब अगर ये object देखें तो it is placed exactly at the pivot at the axis of the spin. तो जब भी कोई object is placed at pivot, तो हमने O level में पढ़ा था, if the force is applied exactly at the pivot, then the torque, the turning effect वो नहीं होता क्योंकि perpendicular distance नहीं है. So similarly, this mass m is placed exactly at the pivot line, axis line. So the centripetal force is 0. Turning effect नहीं है तो centripetal force भी नहीं होगी. Now, according to theory, force of gravitation is divided into two parts. Number one, the weight, which is required to hold the object, and number two, centripetal force required to rotate the object. तो देखें, अर्थ ने मुझे आपको पकड़ के रखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स से. टोटल हमारे बीच में टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें से वेट एक है जिससे हमें पकड़ा हुआ है, उसने हम गिरते नहीं है स्पेस में. नंबर टू, हम उसके साथ साथ रोटेट कर रहे हैं. सो whole of the gravitational force between the earth and the object is divided into two parts. एक holding में, which is the weight of the object. Number two, rotation में, which is centripetal force. But here, when the object is placed exactly at the pole, either pole, चाहे north पे हो, चाहे south पे हो, pivot के ऊपर होने की वजह से ये centripetal force नहीं होगी. तो हम कह सकते हैं at poles, force of gravitation is exactly equal to weight. बाकी कहीं भी ऐसा नहीं होता. So force of gravitation formula is G small m capital M over R square. Weight at the pole is mg at the pole. M cancelled. So the value, the formula of the G at the pole is Gm over R square. So this is the derivation of the G for the poles. लेकिन अगर इसी पर्सन को, इसी ऑब्जेक्ट को आप मूव करवाते हैं और उसको कहते हैं जनाब चल के जरा इक्वेटर वाली पोजीशन पे आ जाओ, यहाँ पे here, so it has some perpendicular distance from the pivot line
तो अब हम नहीं कह सकते कि इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स इसका टॉर्क 0 है. सो एट इक्वेटर gravitational force is weight plus centripetal. Centripetal भी है, weight भी है. Weight hold करने के लिए और centripetal force to rotate it around the axis of the spin. तो हम values डालेंगे. So G M capital M over R square. This is the gravitational force. Now the weight at the equator and the centripetal force is mr omega square. Because the object is not at the pivot, the centripetal force consider करनी पड़ेगी. Okay, so small m, this cancelled. So the remaining formula is capital G, capital M over R square, G at the equator plus R omega square. Now Gm over R square, वो तो हमने पहले ड्राइव कर लिया था कि Gm over R square alone is the G at the pole. तो हम इसको G at the pole कह देते हैं. This is the G at the equator and R omega square is the acceleration centripetal. So this is homogeneous equation. It is homogeneous equation. क्यों? तो भाई G भी तो acceleration होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो A भी acceleration है. तो yes, it's homogeneous equation. अब चेक करते हैं the relation between G at the pole, G at the equator. Suppose हम कह लेते हैं जनाब G at the equator है 9, centripetal acceleration 2 है, तो पोल पे फिर कितना हो जाएगा 11. तो भाई पोल और इक्वेटर वाला G कभी इक्वल नहीं होता. तो क्या रिलेशन हुआ? The G at the pole is greater than the G at the equator. तो पोल पे G की वैल्यू ज्यादा होती है और इक्वेटर पे G की वैल्यू कम होती है. जो हम यूज करते हैं 9.81, ये ना पोल की है ना इक्वेटर की है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लैब के अंदर जो वैल्यू हुई थी, डिटरमिन हुई थी पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से, वो है. और वो ना पोल पे है ना इक्वेटर, वो तो बीच में है. सो हम कह सकते हैं दिस एवरेज वैल्यू. ये पोल की नहीं है, पोल की इससे ज्यादा है, इक्वेटर इसकी कम है. और इसी इक्वेशन को अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें तो इट बिकम्स वेट. तो किसी बंदे का पोल पे वेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर. नेक्स्ट, अगर हम पोल पे हैं, यहां पे हैं, हम यहां इक्वेटर के ऊपर हैं, तो वी कांट अप्लाई फार्मूला जो कि इनसाइड के लिए था. ये इनसाइड वाला फार्मूला नहीं लगा सकते. वी विल अप्लाई आउटसाइड फार्मूला. So when we are exactly at the surface of the planet or above the surface of the planet, then G and D are inversely proportional. लेकिन planet की surface के ऊपर exactly बैठे हुए हैं, तो D कितना लेते हैं हम? Radius. तो we can write G inversely proportional to R square. लेकिन अभी तो हमने पढ़ा था G at the pole is greater than G at the equator. ये तो inversely proportional हैं. So we can write radius of the pole is smaller than the equator. लो जी, तो हमें पता चल गया कि अर्थ का जो रेडियस है पोल पे और इक्वेटर पे इक्वल नहीं है. पोल पे छोटा है और इक्वेटर पे बड़ा है. तो अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये हमें कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा. दिस पोल रेडियस स्मॉल, equator radius large. So hence proved that Earth is not a perfect sphere, it is oval shape. So I repeat this. ये G at the pole बेटा आपके पास से होता है G at the equator, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट पोल पे ज्यादा और ये इक्वेटर पे कम. अब अगर हम पोल पे बैठे हों या इक्वेटर पे बैठे हों
हम अंदर नहीं हैं, हम बाहर ही हैं, इसलिए फार्मूला लगाएंगे g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर और d को हम सरफेस के लिए r लिखेंगे. सो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो मतलब जहां g ज्यादा होगी वहां r कम होगा. g at the pole is greater, so the radius at the pole is smaller. It means pole का radius छोटा, equator का कम, hence earth is oval shape, ये egg shaped. Now we consider the second motion of the earth, which is rotation. अब मैं spin को ignore कर रहा हूं. This is sun and the earth is revolving, rotating around the sun and its described object. तो यहाँ अर्थ है ये छोटी सी, और इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. अब ये सन का मास जो है उसको हम कैपिटल एम लें और मास का कंपैरेटिवली स्मॉल है तो स्मॉल एम से ले लें. So the force of gravitation between these two is g, mass of the earth, mass of the sun divided by distance square from their centers. The small r is the distance between the centers of the two, mean the radius of the orbit. Again, this gravitational force is used for the weight and centripetal. अर्थ को पकड़ के रखा हुआ है, प्लस घुमा रहा है ऐसा. लेकिन यहाँ हम ए लेवल में ये कहते हैं कि when g is inversely proportional to d, so this r radius is too large, approximately 10 power 15 मीटर होता है. तो जब ये r बहुत बड़ा हो जाएगा, when the d is too large, then d is very very small, because we have done when the d becomes 10 times, the gravitational force or g becomes 100 times less. तो भाई ये तो 100 के पता नहीं कितने परसेंट 10 पावर 15, तो g negligible हो जाएगा. It is not zero, negligible हो जाएगा. होता है वेट, हर जगह पे वेट होता है, लेकिन दूसरी फोर्स उससे ज्यादा डोमिनेट हो गई क्योंकि g छोटा हो गया. So we can ignore this weight in the orbit. सिर्फ मैं orbit की बात कर रहा हूं बेटा. In the orbit we have to ignore the value of g, so the weight. लेकिन हम surface के ऊपर weight को ignore नहीं कर सकते बेटा. सिर्फ हम orbit के अंदर g को negligible लेंगे. So we will write g approaches to 0. So force of gravitation in the orbit is approximately centripetal force. So the conclusion is the centripetal force which is required by the earth is provided by the gravitational force between sun and earth. तो क्वेश्चन अक्सर आता है कि what is the origin of the centripetal force? तो आप कहेंगे centripetal force required by the earth is the gravitational force between sun and earth, और ये approximately बीच में plus minus होता है थोड़ा बहुत. वेट तो होता है लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं. So here this g is g m capital M over r square, and the centripetal force in the orbit will be mr omega square. This is centripetal force required by the earth, इसलिए earth का mass लेना है. अब m उड़ा दें, so it becomes g m over r square. So m तो cancel हो गया, अब r रह गया, so खाली r omega square. r को इस साइड पे शिफ्ट कर दें, so the omega square is equal to g m over r cube. Mean the formula for the angular speed of any satellite of any object in orbit is this. So this is omega in orbit. किसी ऑर्बिट के अंदर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, उसकी एंगुलर स्पीड चाहिए, तो ये फॉर्मूला होगा. लेकिन याद रखें
ये उसका मास नहीं है, ये मास किस ऑब्जेक्ट का है जिसके अराउंड वो कर रही है। अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड लेनी है तो मास सन का लेना है। अगर आपने सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड, उसकी एंगुलर स्पीड लेनी है तो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है तो मास अर्थ का लेना है। दिस इज एंगुलर स्पीड। लेकिन समटाइम्स force of gravitation which is approximately the centripetal force, अगर आप ऐसे लिख देते हैं g m capital over r square is equal to mv square over r, तो भाई mr ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर हम ये ले लेते हैं तो again m cancelled, 1 r cancelled, so we can write g m over r is v square, so v g m over r under root, v is equal to g m over r under root. This is the linear speed meter per second वाली, लेकिन angular speed जरा चेक करें, g m over r cube, तो confusion ना हो बेटा, ओमेगा वाली स्पीड में क्यूब आता है, इसमें जस्ट 1 r की पावर आती है, रेस्ट इज सेम। उसके बाद बेटा अब यहां से ऑर्बिट के अंदर जो भी चीज है वो मूव कर रही है, तो डेफिनेटली ड्यू टू स्पीड इट हैज काइनेटिक एनर्जी, सो वी कैन ड्राइव फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी, सो इट विल बी 1/2 m और v स्क्वायर की जगह लिख देंगे g m over r, so the formula becomes g mass of the object in the earth, mass of the planet divided by r. So kinetic energy formula in the orbit is gmm over 2r. तो याद रखें हाफ एम वी स्क्वायर न्यूमेरिकल में ही लगाएंगे, gmm over 2r। अब m एक का मास, कैपिटल m दूसरे का और रेडियस दोनों के सेंटर से लेंगे बेटा। नाउ ओमेगा जो हमने पढ़ा था वो था gm over r क्यूब, तो ये तो स्क्वायर है, लेकिन हमें पता है कि ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई एफ। तो कभी कभी इनसे भी डेरिवेशन आ जाती है, सपोज वी रिप्लेस दिस ओमेगा विद 2 पाई ओवर टाइम पीरियड its square, so gm over r cube. Now 4 pi square over t square is gm over r cube. तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, so we can write t square times gm is equal to 4 pi square r cube, so time period square is equal to 4 pi square over gm into r cube, so this is actually the formula for the time period। जैसे हमारी अर्थ का कितना टाइम पीरियड है, 24 आवर स्पिन करती है अपने स्पिन एक्सिस में, और अगर वो कहेंगे नहीं जी अपने ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड कितना राउंड लेती है, तो आपको पता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो ये बेटा टाइम पीरियड इन द ऑर्बिट का फॉर्मूला हो गया, और ये फॉर्मूला समटाइम्स आपने ए लेवल के बाद अगर टेस्ट देना हो तो ये फॉर्मूला कहलाता है केपलर्स लॉ। जैसे ये केपलर्स का सेकंड लॉ, लेकिन ए लेवल में यूज नहीं होता ये नाम, लेकिन पता होना चाहिए बेटा टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होना है न्यूमेरिकल, लेकिन नाम को नहीं करते हम। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर gm ओवर r क्यूब। तो अगर टाइम पीरियड आपके पास आ गया उसको 1 ओवर टी कर दें तो वो फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू gm ओवर r क्यूब, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं gm इज इक्वल टू r क्यूब ओवर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आपको पता होना चाहिए
जो मार्स है उसके 2 मून्स होते हैं और जो नेपच्यून है उसके 8 मून्स होते हैं। हमारी अर्थ का तो एक ही है। तो अगर एक सैटेलाइट है फिर दूसरा सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में है, तो फिर कैसे यूज करेंगे? या मार्स के 2 मून हैं तो इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे? सपोज ये मार्स है, इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट में R1 में पहला मून और दूसरा ऑर्बिट जो है बड़े वाला उसमें दूसरा मून। और मून जो है मार्स उनका नाम है, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डीमोस। ये है फोबोस और ये है डीमोस। तो अब अगर यहां पे हम ये एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला लगाएं तो जो फोबोस है पहले वाला है उसके लिए हम लिखेंगे GM R1 क्यूब ओमेगा 1 स्क्वायर, ये फोबोस के लिए। अब अगर हम डीमोस के लिए करें तो हम लिखेंगे GM R2 क्यूब ओमेगा 2 स्क्वायर, और ये इसके लिए हो गया। तो भाई G और M तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और M तो जनाब मार्स का मास है, वो दोनों के लिए कांस्टेंट। तो अगर 2 मून्स हैं एक के या 2 सैटेलाइट्स डिफरेंट ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं तो इनकी देखें, ये जो आपके पास इक्वेशन ये लिखी है आपने, ये लिखी है आपने, तो लेफ्ट साइड पे G, इसलिए फिर अगर आपके पास बेटा लेफ्ट साइड वाली प्रोडक्ट सेम है तो आप लिख सकते हैं फिर उसके लिए R1 क्यूब ओमेगा 1 स्क्वायर is equal to R2 क्यूब ओमेगा 2 स्क्वायर। लेकिन कब? when 2 orbits, और वो भी एक प्लैनेट के इर्द गिर्द, 2 सैटेलाइट्स डिफरेंट ऑर्बिट में है, आपके अराउंड में है, तो ये आप लगा सकते हैं। अगर एक की एंगुलर स्पीड पता, एक रेडियस पता, दूसरी की एंगुलर स्पीड पता, तो रेडियस आ जाएगा। ये शॉर्टकट लगाने का है। अब इसके साथ साथ एक और चीज भी है, हमने फॉर्मूला पढ़ा GM इज इक्वल टू R क्यूब ओमेगा स्क्वायर। वो कैसे? ये अगर अर्थ है, इसका यहां से लेकर यहां तक अपना रेडियस, और इसमें एक सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है और ये रेडियस स्मॉल r, तो ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। लेकिन हमें पता है कि अगर हम सरफेस पे बैठे हैं पोल पे तो फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वेट की इक्वल होती है G स्मॉल m कैपिटल M ओवर r स्क्वायर होगा, विच इज mg होगा, कैंसल्ड, तो GM इज इक्वल टू GR स्क्वायर भी होता है। तो कभी कभी ये प्रूव करना आ जाता है कि आप रेडियस ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के बीच में रिलेशन निकालें। तो भाई ये सरफेस के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, तो मैं GM की जगह GR स्क्वायर इज इक्वल टू R क्यूब ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी कभी की ड्राइव। अब ये R क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, और ये स्मॉल r क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। फर्क है ये।